لاہور میں پاکستانی سیاست کی انجینئرنگ اگر کہیں شروع ہوئی بھی ہے تو بالکل غلط نہیں ہوگا، کیونکہ لاہور جو ہے وہ اس وقت بڑا امپورٹنٹ ہوا ہے۔ مسلم لیگ نون کے ہوم گراؤنڈ اور پنجاب کے سب سے بڑے مرکز میں گزشتہ کچھ دنوں سے مسلسل سیاسی نقل و حرکت شروع ہے۔ مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے درمیان ملاقات اور اس کے بعد حکومتی اتحادیوں کے ساتھ بھی ملاقاتوں کا سلسلہ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کا شروع ہو چکا ہے۔ اپوزیشن کی جماعتیں حکومتی اتحادیوں سے ملاقاتوں کو اتحادیوں کا حکومت پر عدم اعتماد بتا رہے ہیں۔ مہنگائی اور ملکی مسائل کے حل کے لیے عوام کو عدم اعتماد کی شکل میں اپوزیشن میں ایک نئی راہ دکھا رہی ہے۔ کل پیپلز پارٹی سے ملاقات کے بعد سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ میں مسلم لیگ نون کی قیادت نے تا حیات قائد نواز شریف پر بھرپور اعتماد کرتے ہوئے ان فیصلوں کا حق دے دیا ہے، مگر ایوان میں وزیراعظم کی تبدیلی ہو یا حکومت کو گھر بھیجنا ہو، آئینی طریقہ اختیار کرنے کا ہی فیصلہ ہوا ہے۔ اسی لیے اپوزیشن جماعتیں اتحادیوں کو ساتھ ملا کر یا تو پنجاب میں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے خلاف تحریک لے کر آئیں گی، یا پھر وفاق میں وزیراعظم یا اسپیکر کے خلاف بھی کوئی ایکشن ہو سکتا ہے۔ اسی سلسلے میں آج مسلم لیگ نون کے شہباز شریف کے صدر جو شہباز شریف ہیں ان کی قیادت میں ایم کیو ایم کے وفد سے ملاقات ہوئی ہے، تو کچھ ہلچل جو ہے وہ اور محسوس ہوئی ہے کہ اب ایک اور بڑی پارٹی جو ہے جس سے ملاقات ہوئی ہے۔ اس سے قبل کل پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کاف لیگ سے ملی اور حکومت کے خلاف عدم اعتماد لانے کے لیے مدد کی اپیل کی گئی، لیکن آج مسلم لیگ کاف کی رہنما کامل علی آغا کے بیان سے یوں لگ رہا ہے کہ مسلم لیگ کاف نے حکومت کے خلاف پیپلز پارٹی کے ہاتھ مضبوط کرنے سے انکار کر دیا ہے، جبکہ آج پرویز الہی کی قیادت میں کاف لیگ نے ایم کیو ایم سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کی۔ کیا گفتگو ہوئی سنیے ذرا۔ جبکہ ایم کیو ایم نے بھی مسلم لیگ نون سے ملاقات کے بعد کہا ہے کہ ایجنڈا سامنے لائے تو پھر دیکھیں گے کہ کیا فیصلہ کرنا ہے۔ ایم کیو ایم اور کاف لیگ کی جانب سے ایسے جوابات آنے کے بعد کیا اپوزیشن کے لیے تحریک عدم اعتماد لانا اتنا آسان ہے؟ اسی پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون کے رہنما خرم دستگیر صاحب۔ بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ خرم دستگیر صاحب، آج مسلم لیگ نون کی قیادت نے ایم کیو ایم کے وفد سے جو ہے وہ ملاقات کی ہے اور ایم کیو ایم نے کہا ہے کہ ایجنڈا جو ہے وہ سامنے آئے گا تو اس پر جو ہے وہ فیصلہ ہوگا۔ اب کل کے اجلاس کے بعد خبریں باہر آئیں کہ پنجاب میں تبدیلی لائی جائے گی۔ اب ایم کیو ایم کی تو پنجاب میں اس طرح سے کوئی سیٹ نہیں ہے، تو پھر کیا وفاق کے حوالے سے جو تبدیلی کا خیال ہے یہ بھی آپشن زیر غور ہے؟ اس غریب دشمن اور مافیا سرپرست اور نالائق حکومت سے آئینی طریقے سے نجات حاصل کرنے کے لیے تمام آپشنز کھلے ہیں، اور آنے والے دنوں میں مسلم لیگ کے اندر بھی اور دوسری جماعتوں کے ساتھ جو پی ڈی ایم کا حصہ ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اس اسٹریٹجی کے اوپر بحث ہوگی کہ یہ تین آپشنز ہیں، پنجاب اسمبلی ہے، اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد ہے اور وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد ہے۔ تو ان تینوں آپشنز کو وے کر کے پھر کوئی حتمی فیصلہ کیا جائے گا کہ ہم نے کس سیکوینس میں آگے جانا ہے، یا ایک ہی جسٹ میں ہم وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد جو ہے اس کو فائل کر دیں۔ تو یہ ڈسکشن اس وقت جاری ہے اور تمام آپشنز کو دیکھا جا رہا ہے، وے کیا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے بہتر طریقے سے ہم آگے بڑھ سکیں۔ شاہد خاقان عباسی صاحب، سابق وزیر اعظم، خرم دستگیر صاحب، ان کا یہ کہنا ہے کہ تحریک عدم اعتماد آئے گی تو ماحول جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گا، بیکاز اپوزیشن کے حوالے سے سوالات اٹھ رہے تھے کہ اپوزیشن اتنے عرصے سے کرنا کچھ چاہ رہی ہے لیکن ہو کچھ نہیں پا رہا ہے۔ اب یہی اپوزیشن ہے، سینٹ ہو یا پارلیمنٹ ہو اور ووٹنگ کا کوئی معاملہ ہو کسی بل کے حوالے سے، آپ ہمیشہ شکست خوردہ ہی نظر آئے ہیں ہمیں، تو اب یہ کیسے ممکن ہو جائے گا؟ واٹ از نیو دس ٹائم؟ نیو سب سے جو اہم ترین بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا جو پہلے تو ان کا بھی یہ خیال ہے کہ صرف مہنگائی ہی ان کی خرابی یا ان کی حکومت کے لیے ایک ویک پوائنٹ ہے، لیکن آپ کے ناظرین مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ بیک وقت مہنگائی، جو ضروری اجناس ہیں ان کا ناپید ہونا، قرضے، بیرونی غلامی اور دہشت گردی، یہ پانچ چیزیں بیک وقت بہت تیزی سے افریت بن کر بڑھ رہی ہیں۔ عوام کی زندگیاں، اگر کوئی کھاد سے بچ گیا یا بجلی سے بچ گیا یا مہنگائی سے بچ گیا، تو وہاں ہم نے دیکھا ہے کہ اس پچھلے ہفتے میں پاکستان کے ایران بارڈر پہ بھی پنجگور میں حملہ ہوا، بہت سیریس دہشت گردوں کا۔ پاکستان افغانستان بارڈر جو نوشکی ہے وہاں حملہ ہوا، اس سے پہلے کیچ میں حملہ ہوا، اور پچھلے ایک سال سے اسینچلی جب سے داسو ڈیم بنانے والے چائنیز ورکرز کے اوپر حملہ ہوا ہے جولائی میں، اب تک جو ہے معاملہ سنجیدہ ہوتا جا رہا ہے، اور
महंगाई की तरह ये इशू भी हुकूमत के कंट्रोल में नहीं है, पहली बात। दूसरा ये है कि इससे निपटने के लिए हुकूमत के पास कोई हिकमत अमली और स्ट्रेटजी नहीं है। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव कोलैप्स है, जो हम ये समझते हैं कि अब ये जनाजा हाकमियत का इतना भारी हो गया है कि अब जो इत्तेहादी जमातें हैं और बहुत सारे लोग जो उनकी अपनी पार्टी में हैं, अब इस जनाजे को कंधा देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन हुकूमत तो कर रही है ना, आवाम से अपने राब्ते तेज करने की कोशिश कर रही है। एक तरफ आपने हुकूमत को गिराने का फैसला किया है, तो दूसरी तरफ वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि अवामी राब्ता मुहिम जो है उसको शुरू किया जाएगा, अवामी राब्ता मुहिम तेज की जाएगी। लेकिन अवाम के पास जब भी वज़ीर आज़म गए हैं तो आपके ताहयात लीडर नवाज शरीफ की करप्शन के अलावा कोई और नजरिया वो अवाम के सामने उस तरह से रखते नहीं है, तो इस बार क्या चांसेस हैं उनके? जी, वो तो इमरान खान साहब तो समझते हैं कि कायदे मोहतरम नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी के जो चीफ चेयरपर्सन है आसिफ जरदारी, इन दोनों का नाम लेकर शायद डराकर दिखाकर वो अवाम को एक दफा फिर अपनी तरफ रागिब करेंगे। लेकिन देखिए, अब ये मामला जो सारा था करप्शन का, एहतसाब का, ये कोई थ्योरी नहीं रही, ये कोई एक सोच नहीं रही। अब पिछले 3.5 साल में इसके ऊपर अमल हो गया है। आपने नवाज शरीफ को जेल में डालकर देख लिया, आपने आसिफ जरदारी को जेल में डालकर देख लिया, आपने मुस्लिम लीग नून के दर्जनों जो अमायदीन हैं, बड़े कायदीन हैं, उनको 20-20 महीने जेल में डालकर देख लिया। दो बातें हुई हैं, एक तो इनके तमाम इल्जाम झूठे साबित हुए हैं कि 20-20 महीने रखकर जेल में कोई इल्जाम साबित नहीं कर सके। मुझे ये बताएगा कि नवाज शरीफ साहब जब से नाअहल हुए हैं उस वक्त से एस्टेब्लिशमेंट को निशाने पर रखे हुए हैं, फिर ये भी उनकी जानिब से कहा जाता रहा, एक बयानिया बल्कि रहा कि इमरान खान के सर पर जो है वो उनका हाथ है। तो अब आपको क्या लगता है कि अभी ये जो कोशिशें आप लोगों की तरफ से शुरू की गई हैं, सर से हाथ उठ गया है या हाथ है लेकिन फिर भी आप गिराने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं? जी, हम अपनी कोशिश जारी रखे हुए हैं और अब जिस तरह मैंने कहा कि बैक वक्त महंगाई और दहशतगर्दी और कर्जे और पाकिस्तान की जो मुआशी मखदूश हालात हैं उनमें मजीद खराबी होगी ना। जो ऑलरेडी जब IMF ने प्रोग्राम हमने इस हुकूमत ने पाकिस्तान की मुआशी खुद मुख्तारी का सौदा किया और वो स्टेट बैंक का बिल पास किया, उसके नतीजे में IMF ने जब अभी प्रोग्राम बहाल किया है तो उन्होंने, हुकूमत ने नहीं हमें बताया, हम जो मुंतखब नुमाइंदे पार्लियामान में है, इमरान खान ने हमें नहीं बताया, हमें IMF ने बताया कि आने वाले बजट में 730 अरब के मजीद टैक्स लगने वाले हैं। उसके लिए उन्होंने कहा जी वो लगेंगे तो ये काम आगे चलेगा। तो जब ऑलरेडी इस किस्म की एक और ऐसी कातिल सुनामी पाकिस्तान के गरीबों की तरफ, मेहनत कशों की तरफ, काश्तकारों की तरफ बढ़ रही है, तो फिर ये जितने मर्जी जलसे कर लें वो तो रेत की दीवार साबित होगी। क्योंकि उस बुनियाद में, जिस तरह मैंने कहा, 4 साल पहले तक तो ये चूंकि अनट्राइड थे, इनका टेस्ट नहीं हुआ था, लेकिन अब इमरान खान का इम्तिहान हो चुका है और वो उसमें इंतहाई भयानक तरीके से नाकाम हो चुके हैं। तो आप करें, कुछ लोग होंगे जो उनके जलसों में जाएंगे, लेकिन जिस तरह हमने अब जब भी अवाम का दर्जा हरारत चेक किया गया है, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात थे, चाहे जितने भी ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं चारों सूबों में, वहां इमरान खान साहब को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। और खैबर पख्तूनख्वा में जो समझते थे कि उनका स्ट्रांग होल्ड है, वहां के वोटरों की तरफ से एक बहुत बड़े मुस्तरद किया जाना जो है, उनको नविश्ता दीवार पढ़ लेना चाहिए कि अब। ठीक, बहुत शुक्रिया ख़ुर्रम दस्तगीर साहब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। उनका ये मानना है कि अवामी राब्ता मुहिम तो यकीनन शुरू की जा रही है, लेकिन इस बार जो है वो अवाम इतनी मुसीबत में और मुश्किलात में मुब्तला हैं कि अवाम से वो राब्ता बनाना जो है वो यकीनन मुश्किल हो जाएगा और अवाम इस वक्त काफ़ी क्राइसिस में है। इस वजह से इस अवामी राब्ता मुहिम का भी उनको जो है वो कोई फ़ायदा नहीं होगा। अपोजिशन अपना माइंड मेकअप कर चुकी है और लहदा तारीखों के ऊपर जो है वो मार्च भी किए जाएंगे। लेकिन एक चीज़ जिसके ऊपर इत्तेफाक हुई है कि तहरीक अदम एतमाद तो ज़रूर लाई जाएगी। आगाज़ कहाँ से होगा, हिकमत अमली क्या होगी, इस पर बात होना या ये तय पाना अभी बाकी है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। दुनिया में हर रोज एक नई बीमारी पैदा होती है, मगर कुछ वबाएं ऐसी हैं जिनका आज तक इलाज दरियाफ्त नहीं हो सका या फिर उनका इलाज इतना महंगा है कि आम आदमी इसे अफोर्ड कर नहीं पाता।
इस वक्त पाकिस्तान एड्स के मर्ज में एशिया में पहले नंबर पर आ गया है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का शुमार दुनिया के खतरनाक तरीन एड्स से मुतासरा 11 ममालिक में होता है। आज डिप्टी चेयरमैन सेनेट मिर्जा आफरीदी की ज़ेर सदारत सेनेट इजलास में वक्फा सवालात के दौरान वजारत नेशनल हेल्थ सर्विसेज ने तहरीरी जवाब में एतराफ़ किया कि पाकिस्तान में दीगर एशियाई ममालिक की निस्बत एड्स के मरीजों की तादाद में इजाफा हुआ है। जवाब में बताया गया कि एड्स में इस्तेमाल शुदा जो सिरिंजेस का दोबारा इस्तेमाल है, टेस्टिंग और इलाज का ना होना इसके फैलाव की बुनियादी वजूहात हैं। एड्स के फैलाव की वजूहात में बगैर मुआयना किया हुआ यानी अनस्क्रीन्ड खून की थैलियों की दस्तयाबी भी शामिल है। जमात इस्लामी के रुकन सेनेटर मुश्ताक अहमद ने सूरत हाल पर काफ़ी तशवीश का इजहार किया है और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान एड्स के फैलाव में 11 खतरनाक तरीन ममालिक में शामिल है और मुल्क में 2,40,000 अफराद एड्स का शिकार हैं। क्या वजह है कि हुकूमत इस बीमारी के फैलाव को रोकने में अब तक नाकाम क्यों है, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी डायरेक्टर प्रोग्राम नेशनल हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर अब्दुल बसीर खान साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब शो में ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहला वही सवाल कि आखिर क्या वजह है कि अब तक जो है हुकूमत इस बीमारी को फैलाव को रोकने में जो है वो नाकाम नजर आती है और अब जो है वो एक और सहरा जो है वो हमारे सर सज गया है कि हम एशिया में पहले नंबर पर आ गए हैं। सबसे पहली वजह तो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है, जो पॉपुलेशन का साइज़ है, ये सबसे बड़ी वजह कि एक बहुत बड़ा रीजन में एशिया में हम बहुत बड़े मुल्क हैं। तो एक वजह तो हमारी पॉपुलेशन है। दूसरी सबसे ज़्यादा जो जिस तरह आपने जिक्र किया कि हमारे लोगों में शऊर और आगाही की थोड़ी सी कमी है उन लोगों के लिए जो इस मर्ज में मुब्तला है और या जो रिस्की बिहेवियर रखते हो। एक्चुअली पाकिस्तान में HIV का स्टेटस जो है या उसका जो एपिडेमिक है ये कंसंट्रेटेड एपिडेमिक इसको कहते हैं, यानी ये तकरीबन 0.9% पॉपुलेशन में अभी तक ये HIV की जो वायरस है उसका वजूद है। वो 4 मखसूस जो रिस्की बिहेवियर के लोग हैं जो इंजेक्शन नशे के लिए इंजेक्शन यूज़ करते हैं, जो फीमेल सेक्स वर्कर्स हैं, जो ट्रांसजेंडर सेक्स वर्कर्स हैं और ये जो मेल सेक्स वर्कर्स हैं, ये 4 वो रिस्की बिहेवियर के अफराद हैं जिसमें HIV की प्रेवलेंस सबसे ज़्यादा है। और इन फिर 4 ग्रुपों में जो इंजेक्शन ड्रग यूज़र हैं वो फिर बहुत बड़ा चंक, यानी अगर उसकी 47 से 48% सिर्फ उन लोगों में पाया जाता है। वो उनमें सबसे बड़ी वजह इंजेक्शन का सिरिंजेस का रीयूज़ है, जिसके लिए सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अभी हाल ही में जो एक स्ट्रेटेजी बनाई है वो ये कि वो इंजेक्शन सिरिंजेस पाकिस्तान में यूज़ होंगे जो ऑटो डिस्पोजेबल होंगे, यानी वो एक मरतबा यूज़ होंगे उसके बाद फिर वो ब्लॉक हो जाएगा। तो ये एक सबसे बड़ी वजह है क्योंकि ये लोग आपस में सिरिंजेस शेयर करते हैं। और फिर रिस्की बिहेवियर के जो बाकी अफराद उनके लिए अगरचे प्रेप की, यानी प्रेप ये कि प्रिवेंशन के लिए भी इलाज मौजूद हैं कि अगर वो रिस्की बिहेवियर रखते हैं तो उनको एटलीस्ट वो मेडिसिन हमारे मराकज़ से लेनी चाहिए, इस्तेमाल करनी चाहिए। सही। डॉक्टर साहब, तो मुझे ये बताइए कि ये क्या क्या इकदाम जो हैं वो मज़ीद किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अवेयरनेस की कमी है, लोगों को अवेयरनेस अगर दी जाए तो इसके ऊपर काबू पाया जा सकता है। मज़ीद हुकूमत जो है वो इसमें कोई रोल प्ले कर सकती है। क्या किया जाना चाहिए कि हम जो है वो ये जो जिस शरह के साथ ये बीमारी बढ़ रही है उसको हम किसी तरीके से कंट्रोल कर पाएँ? सबसे बड़ी वजह तो ये है मैम कि HIV के साथ अनफॉर्चुनेटली एक स्टिग्मा अटैच है। वो उस स्टिग्मा की वजह से कि लोग अगर खुदा न खास्ता इस बीमारी के शिकार हो जाएं किसी भी वजह से, अभी मिसाल के तौर पे अगर किसी बंदे को किसी रोड एक्सीडेंट के मरीज को या कहीं भी किसी ज़रूरतमंद को अगर कोई अनस्क्रीन शुदा खून दिया जाए तो वो उस ब्लड में HIV का वायरस पाया जाता हो, तो इसका मतलब तो नहीं है कि उस आदमी ने खुदा न खास्ता कोई ऐसा बुरा काम किया हो, लेकिन वो HIV का शिकार हो सकता है। तो सबसे पहले हमने अपने ब्लड बैंक्स पे इस तरह के इदारे जो है उस पे ये कंट्रोल करना पड़ेगा कि वो अनस्क्रीन शुदा ब्लड न डिस्ट्रीब्यूट कर लें। हमारे यहाँ सिरिंजेस की कम से कम इस्तेमाल होना चाहिए। पाकिस्तान में इंजेक्शन का मेरे आपके समेत
हम अननेसेसरली इंजेक्शन यूज करते हैं अपने इलाज मुआवजे के लिए, जिसकी बिल्कुल चंदा जरूरत होती नहीं है। और दूसरी बात सबसे अहम ये है कि लोगों में ये शऊर और आगाही पैदा करना चाहिए कि HIV एड्स के अगर बर वक्त इलाज तशखीस हो और फिर इसका इलाज शुरू करते हैं तो ये लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट है, उसकी जिंदगी बचाई जा सकती है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली लोगों में लोग बात नहीं करते हैं, लोग इसे कतराते अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज जो एड्स के मर्ज के साथ जुड़ी हुई है वो ये है कि ये ला इलाज मर्ज है, तो जरा इसके ऊपर भी क्लियर कीजिए कि और ये भी लोगों का एक गुमान होता है कि जिसको एड्स हो जाए बस अब इसने नहीं बचना, इसका मरना तय है। तो इसके ऊपर भी थोड़ी रोशनी डालिएगा कि ये किस हद तक दुरुस्त बात है या किस हद तक इसका इलाज है, और अगर किसी को एड्स हो जाए तो फिर उसका लाइफ स्पैन कितना रह जाता है? वायरल जी HIV अगरचे एक वायरल बीमारी है, वायरस से फैलती है, लेकिन इसका अगर बर वक्त तशखीस हो, लोगों में शऊर और आगाही हो और अगर इसकी ट्रीटमेंट साथ साथ वो कर लें तो ये लाइफ लॉन्ग, आप यकीन करें कि हमारे पास ऐसे भी मरीज हैं कि जिसे 20, 22, 25 साल से वो इलाज कर रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक ठाक जिंदगी गुजार। तो हमारी जो गुजारिश है वो ये है कि एक तो स्टिग्मा जो इसके साथ अटैच है, हमारे वो तमाम ओपिनियन लीडर, सिविल सोसाइटी को इसके लिए आवाज उठानी चाहिए कि HIV मर्ज एक बंदे को अगर लाहक हो गया है किसी भी वजह से तो उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनको ट्रीटमेंट सेंटर हमारे पाकिस्तान में इस वक्त इस 2-3 सालों में हम इसकी जो इलाज के मराकज हैं ये 50 से 60 के करीब हैं और ये तमाम सूबों में मौजूद हैं, बड़े बड़े शहरों में मौजूद हैं, जो हाई रिस्क पॉपुलेशन है उनके करीब हैं, जो बड़े बड़े टाउन और शहर हैं, कराची, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, सियालकोट, डीजे खान, कोयटा, इसमें इस्लामाबाद, पेशावर, इसमें हमारे इलाज के मराकज मौजूद हैं और तशखीस करने के लिए रैपिड टेस्ट हैं, उसी जगह पे जो उनको टेस्ट का इलाज उनका नतीजा बताया जाएगा वो भी मौजूद है हमारे यहाँ। तो अगर किसी को मिसाल के तौर पे अगर मुझे कोई ऐसी मेरा ऐसा काम हुआ है या मुझे कोई ब्लड मैंने कहीं से अनस्क्रीनशुदा लिया है या कोई रिस्की बिहेवियर का मुर्तकिब हुआ हूँ तो उसको फौरी तौर पे आकर के अपनी तशखीस करनी चाहिए। जब तशखीस हो और उसका इलाज शुरू के मुताबिक तो वो शख्स नॉर्मल जिंदगी गुजार सकता है काफी अरसे तक। 1 दिसंबर को मनाया जाता है डॉक्टर साहब, ये एड्स का जो दिन है, तो आपको क्या लगता है कि मना लेना सिर्फ काफ़ी है? और हमें पता हो जी कि आज एड्स का दिन मनाया जा रहा है, लेकिन लोगों को मज़ीद कुछ इसके बारे में जो है वो नहीं पता होता, ना इस बीमारी के हवाले से कि किस तरीके से इससे बचा जा सकता है, हो जाए तो फिर क्या किया जाना चाहिए, ना हो उसके लिए क्या एहतियात करनी चाहिए? मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान में एक चीज़ जो हमने एज ए पब्लिक हेल्थ के वर्कर के हमने देखा है वो ये कि लोग सेहत को तवज्जो बहुत कम देते हैं। तो हमारे सेहत के तमाम मसाइल, टीबी भी इसी तरह एक बीमारी है, मलेरिया बीमारी है, कोविड अभी एक बीमारी है, HIV भी इसी तरह एक वायरस है, पोलियो एक वायरल डिजीज है, हेपेटाइटिस है जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा तादाद में है इसके लोग। गुजारिश ये है कि हमारे अवाम के लोगों से कि अर्ली तशखीस, जल्दी तशखीस किसी भी बीमारी का हो तो उसका इलाज भी मुमकिन है, उनके साथ नॉर्मल जिंदगी गुजारना मुमकिन है, लेकिन लोगों ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। डायरेक्टर प्रोग्राम नेशनल हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर अब्दुल बसीर खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। स्टिग्मा जो इसके साथ जुड़ा हुआ है उसको जो है वो ख़त्म यकीनन होना चाहिए। कोई गलत चीज़ किए बगैर भी आप इस बीमारी में मुब्तला हो सकते हैं। वायरल बीमारी है ये जो एक से दूसरे को लग सकती है और इसकी बहुत सारी जो है वो वजूहात हो सकती हैं। इससे यकीनन बचने के लिए जो है वो कोशिश करनी चाहिए और एहतियात जो है वो पूरी करनी चाहिए। इसके साथ ही एक छोटा सा ब्रेक हम यहाँ पर लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं साथ। यूँ तो हम 21वीं सदी में जिंदगी गुजार रहे हैं, मगर हकीकत यह है कि आज भी हमारे मुल्क में दौरे जहालत से बदतर जिंदगी है। आज भी हमारे मुआशरे में औरत के साथ वही सलूक किया जाता है जैसे इस्लाम के आने से कबल था। कभी पसंद की शादी करने पर बाप ने गैरत के नाम पर इकलौती बेटी को जहर देकर मार डाला, तो कभी भाई ने बहन को गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया। कभी गैर मर्द से बात करता देखकर भाई की गैरत जाग उठी, तो कभी बहन के अकेले बाहर जाने पर। मगर 2 रोज कबल सरगोदा में पेश आने वाले वाक़े में लड़की के साथ ज्यादती होने के बाद भाई ने बहन को गैरत का मसला बनाकर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस के मुताबिक 4 दिन पहले मुलजिमान ने लड़की से ज्यादती करके वीडियो बनाए।
मुतासरा लड़की की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज किया गया था। चारों मुल्जिमान को अबूरी जमानतें होने पर भाई ने तैश में आकर अपनी ही बहन को फायरिंग करके कत्ल कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने गैरत के नाम पर बहन को कत्ल करने वाले मुल्जिम यासिर को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन क्यों आज भी हम मजलूम औरत को गैरत के नाम पर निशाना बनाने की कोशिश करते हैं, जबकि इस केस में तो ये मजलूम औरत पहले से ही ज्यादती का निशाना बन चुकी थी। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट समरा काका खेल साहिबा। बहुत शुक्रिया समरा साहिबा शो में ज्वाइन करने के लिए। समरा साहिबा, ये अपनी तर्ज का इसलिए एक मुख्तलिफ केस है क्योंकि ये तो हमने बहुत सारे इस तरह के वाक़यात देखे कि बहन घर से भाग गई या अपनी मर्जी की शादी करना चाहती थी तो गैरत के नाम पर जो है उसका कत्ल कर दिया। इस केस में हुआ ये है कि बहन के साथ पहले ही ज्यादती हो गई है। अब बजाय इसके कि भाई जो है बहन के साथ खड़ा होता, उसको इंसाफ दिलाने के लिए कोशिश करता, जद्दोजहद करता, उसने इतनी बुज़दिली का मुजाहरा किया। उसने कहा कि इस मसले को जड़ से ही खत्म कर देते हैं। उसने अपनी बहन को ही मौत के घाट उतार दिया और सो कॉल्ड गैरत के नाम के ऊपर जो है ये कत्ल हुआ है। क्या कहेंगे आप? Thank you so much, Aisha, for taking me on the board. सबसे पहले तो मैं मज़म्मत करती हूँ the incident take place in Sargodha, and ये अगर आप देखें तो it's not happening something for the first time in Pakistan, बल्कि अगर आप पूरे world wide में देखें, so these things are very common, and चाहे वो इंडिया हो या पाकिस्तान हो, these practices are very common among those people like who belong from the weak segment of the society. اور ہمیشہ عورتوں کو اور لڑکیوں کو جو ہے ہاؤس آف پیٹ سمجھا جاتا ہے ان سچ کائنڈ آف، کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ اویئرنیس نہیں ہے اینڈ دیئر لیک آف دا اویئرنیس، اینڈ وین سچ کائنڈ آف دا انسیڈنٹ آر ٹیکنگ پلیس تو دا لیڈنگ فیملی اور جو فیملی ہوتا ہے اسپیشلی دا فادر اور دا بردر، تو وہ غیرت کے نام پہ لڑکیوں کو بیٹیوں کو قتل کر دیتے ہیں، بیکاز ان کا یہی کنسپٹ ہے کہ ہاؤ وی ول بی فیسنگ دا پیپل ان دا سوسائٹی، اینڈ بیٹر یہ ہے کہ وی شوڈ اڈاپٹ دس سائلنٹ کوڈ آف کنڈکٹ اینڈ وی شوڈ ناٹ فیس اینی ون، اور ٹرائنگ ٹو بی I want to be very open، اور خاص کر وہ خواتین یا وہ لڑکیاں when they are not married and when such kind of the incident are taking place, so then they are thinking that okay, she is no more a girl and she became a woman، تو اسی لیے for the sake of their security and I mean the dignity and respect ان کو قتل کر دیا جاتا ہے which is a very heinous and a brutal act۔ تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس کی بڑی وجہ ہے کیا؟ قانون میں ہمارے بہت سارے ایسے لوپ ہولز ہیں جس کی وجہ سے اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ پیش آتے رہتے ہیں اور رکنے کا نام نہیں لیتے۔ اب یقیناً اگر ہم اسی کیس کے حوالے سے بات کر لیں تو بھائی نے بہن کو قتل کر دیا۔ اب اگر فیملی کی بات کریں تو کون ہوگا جو شاید بہت سارے لوگ ہوں جو ایک کچھ عرصے تک اس کو پرسو کریں، لیکن اس کے بعد زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ نہیں چاہتے کہ فیملی کا ایک فرد اگر جا چکا ہے تو دوسرا جیل کی سلاخوں کے پیچھے چلا جائے، اس کو کوئی پرسو ہی نہیں کرتا۔ Yeah, there are so many lacunas and there are so many gaps in our the policies, and agar aap dekhe so there are so many issues in our laws, and even agar aap dekhe to government to us pe kaam kar rahi hai, but still nothing is happening. Our implementation and our like laws in here in Pakistan are very weak. اس کو تو اسٹرینتھن کرنے کی کوشش کر رہا ہے the government of Pakistan, and اگر آپ دیکھیں تو Parliament of Pakistan also unanimously passed the bill on the name of this anti-honor killing, and there is a section of 311 of the penal code. اگر آپ دیکھیں تو پہلے اس میں جو سزا تھی punishment for the the accused and the tormentors، تو it was 7 years، لیکن ابھی جو ہے جب سے سمرا وہی تو بات ہے کہ جتنے مرضی بل پاس ہو جائیں، جتنے مرضی قانون ہم بنا لیں، لیکن اگر ایک کیس پرسو نہیں ہوگا جو کہ اکثر غیرت کے نام پر قتلوں کے معاملے میں ہوتا ہے، جو غیرت کے نام پر قتل ہوتے ہیں ان معاملات میں یہ ہوتا ہے کہ کیس کو آگے پرسو ہی نہیں کیا جاتا، تو ریاست کا اس طرح کے معاملات میں مدعی بننا یہ کتنا اہم نقطہ ہے؟ Yeah, agar aap dekhe to I'm agree with you because our remedial part is also weak. Judiciary ko aap dekhe because judiciary is playing a major role in this. تو اگر اس میں ہم اس پہ جو ہے تھوڑا کام کرے کہ that how it going to be work, so on that way we can achieve our goal، اور اس طرح کے جو heinous crimes ہیں and these brutal acts، so اس کو ہم روک تھام کر سکتے ہیں، but the government should focus on
کہ کہاں پہ ہمارے ساتھ گیپ ہے اینڈ ویئر وی کین ورک آن اٹ. سو دیز شوڈ بی فرسٹ آئیڈینٹیفائی. جو گیپس ہے اس کو فرسٹ آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے, دین وی کین ڈو سم تھنگ آن دا ریمیڈیل پارٹ. ٹھیک, بہت شکریہ. سمرا کاکخیل صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی, ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ. بہت ہی افسوسناک قسم کے یہ واقعات ہیں جو ہم ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ بڑھتے چلے جاتے ہیں, یہ ختم نہیں ہوتے ہیں, لیکن یقیناً اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. جیسے کہ سمرا نے بھی کہا کہ بہت سارے لیکوناز یا لوپ ہولز یقیناً ہمارے قانون کے اندر موجود ہیں, جو کہ غیرت کے نام پر جو ہے وہ کبھی عزت کے لیے جو قتل کیے جاتے ہیں کہ غیرت کے نام پر قتل کر دیا گیا, غیرت کے نام پر کبھی بھی جب آپ قتل کرتے ہیں تو اس سے آپ کی عزت جو ہے وہ کبھی بھی بحال نہیں ہوتی. اگر ہم اسپیسیفکلی اس کیس کے حوالے سے بھی بات کریں تو یہاں پر شاید اگر وہ شخص اپنی بہن کا ساتھ دیتا, اس کے لیے کھڑا ہوتا, اس کے انصاف کے لیے لڑائی کرتا, اس کو انصاف دلاتا, تو شاید میرا خیال ہے کہ اس میں اس کی زیادہ عزت ہوتی اور اس کی بہن کی زندگی بھی جو ہے وہ اس سے بچ سکتی تھی. اس کے ساتھ ہی بہرحال پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.